going to start a new chapter, that is The Hack Driver from our Footprints Without Feet book. A very interesting chapter it is, and it is written by Harry Sinclair Lewis. Written by Sinclair Lewis. So, first of all, let us know about the author Harry Sinclair Lewis. He's an American novelist and short story writer as well as a playwright. If I talk about his achievements in 1930, he became the first writer from US to receive Nobel Prize in Literature. इनको लिटरेचर में नोबल प्राइज़ मिला था 1930 में एंड ही वॉज द फर्स्ट वन टू रिसीव दैट प्राइज एंड सम ऑफ इफ आई टॉक अबाउट हिज नोवेल्स एंड some works of literature. So his famous novels are Hike and the Aeroplane and The Job, an American Novel, or Free Air, etc. So let us begin our chapter now. The title is The Hack Driver, that means the Tonga driver. Hack driver means the puller of horse. You can say a horse cart driver, or you can say a Tonga driver simply. So this is very interesting story of a young lawyer, and in the chapter now, here we will read. Here is a person. Here is a young lawyer who interact with a person who is a hack driver, who is a Tonga driver, and we will read about it. We will read that how the young lawyer interact with that hack driver. He wants to find Oliver Lutkins, whom he wants to serve the summon, and what happens when he roam here and there to find Lutkins, whether he find him or not. So let us begin now. We will read it line by line. Yes. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. Here, I is the young lawyer. Okay. After graduating, the lawyer is saying that after graduating with honors के साथ graduate अपनी graduation complete करने के बाद I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. He became a junior assistant clerk in a very huge, or you can say that a very impressive firm. Magnificent here means very huge or impressive firm. So here the young lawyer is saying that after I complete my graduation, I start working as a trainer, as a assistant clerk in a very huge or a very impressive law firm. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons, like a cheap private detective. What I did there, what the job a young lawyer did there, I was sent not to prepare legal briefs. मुझे मतलब लीगल ब्रीफ्स प्रिपेयर करने का काम नहीं दिया जाता था. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल ब्रीफ्स आर द डॉक्यूमेंट दैट आर टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट. वो डॉक्यूमेंट्स जो कहाँ पे प्रेजेंट किए जाते थे, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन कोर्ट्स. मुझे ये प्रिपेयर करने का काम नहीं दिया जाता था. बट व्हाट वाज माय वर्क वाज टू सर्व समन्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव. मेरे को काम दिया जाता था समन्स सर्व करने का. समन्स क्या होते हैं? समन्स होते हैं जैसे कि हम लोग जैसे किसी को कोर्ट में बुलवाया जाता है तो उसके लिए बुलावा भेजा जाता है ना, एक लेटर भेजा जाता है. तो जैसे कि एक चीप डिटेक्टिव का काम होता है ना, सिमिलरली मुझे समन सर्व करने का काम दिया जाता था कि जाओ तुम इस पर्टिकुलर बंदे को ढूंढो और उसको समन दे के आओ, उसको ये कहो कि भाई तुम्हें कोर्ट में अपीयर होना है. ओके. I had to, before magistrate, you have to appear in the court. I had to go to the dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. And what I have to do, I have to roam here and there. I have to go into the dirty and shadowy corners of the city. Dirty मतलब बहुत ही गंदे गंदे, और you can say that dark corners में जाना पड़ता था मुझे सिटी के. किन को ढूंढने के लिए? अपने विक्टिम्स को, उन क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए. नेचुरल सी बात है. अब भाई समन्स किसको दिए जाएंगे? कोर्ट में बुलावा किसको आएगा? कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने किसको अपीयर होना है? जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है. तो नेचुरल सी बात है कि वो कहाँ पे होंगे, प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? गंदे इलाकों में, जो सिटी के गंदे इलाके हैं जहाँ पे मार धाड़ होती है, जहाँ पे गलत काम होते हैं. शेडोई कॉर्नर्स जिसको हम बोलते हैं, डर्टी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी हम जिसको बोलते हैं. तो मुझे वहाँ पे उनको समझ देने के लिए जाना पड़ता था. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. एंड व्हाट हैपन्स समटाइम्स द लार्जर एंड समटाइम्स द सेल्फ कॉन्फिडेंट बॉयज beat him.
क्या होता था, कई बार बड़े बड़े मस्कुलर बॉयज़ उनको क्या कर देते थे, उस लॉयर को मार दिया करते थे कि मुझे समन देने के लिए आया है, मुझे बुलाने आया है कोर्ट में, मुझे समन सर्व करने आया है, तो वो उसको मार दिया करते थे. आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द सिटी ऑफ एंड साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी. और मुझे ये काम करना बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता था, ये अनप्लेजेंट लगता था मुझे. और इस चीज़ ये काम करने के बाद मुझे सिटी की वो साइड रिवील हुई जो आज तक मैंने नहीं देखी थी. आई इवन कंसिडर्ड फ्लिंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड. अब क्या कहते हैं वो लॉयर कहते हैं कि इससे बेटर मैं अपने होम टाउन में ही रह जाऊँ, होम टाउन में भाग के चला जाऊँ. फ्लिंग का मतलब क्या होता है, फ्लिंग टू माई होम टाउन, रनिंग अवे टू माई होम टाउन. ही फील्स दैट ही शुड रन अवे टू हिज ओन होम टाउन, कि वो अपने खुद के होम टाउन में भाग जाए, वहाँ पे उसको एज अ रियल लॉयर एक्सेप्ट कर लिया जाता और उसको ये अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड पास नहीं करना पड़ता अगर वो यहाँ सिटी में नहा आया होता. ठीक है. सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट फॉर 40 miles in the country to a town named New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. Very important line these are. So एक दिन क्या हुआ, आई वॉज वेरी हैप्पी. रिजॉइस मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी मच चीयर दैट वन डे दिस सेड मी. उन्होंने मुझे क्या कहा, मेरे जो ऑनर्स थे, मेरे जो सुपीरियर्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें एक टाउन में जाना है जिसका नाम है न्यू मुलियन. वहाँ पे जाना है तुम्हें, जो कि यहाँ से कितना दूर है, 40 miles दूर है. वहाँ पे जाके तुम्हें समन देना है एक बंदे को जिसका नाम क्या है, ओलिवर लुटकिंस है. ठीक है. तो तुम्हें कहाँ जाना है, न्यू मुलियन जाना है, यहाँ से 40 miles दूर. और वहाँ जाके तुमने किसको समन देना है, एक बंदे को जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस. वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, ओलिवर लुटकिंस, ध्यान रखना. तो कहाँ जाना था उसे, न्यू मुलियन. अब आगे देखते हैं. यस, वी नीडेड दिस man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. हमें ये बंदे की ज़रूरत है, हमें इसको लॉ केस में सामने अपीयर करना है, सामने इसको जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना है. हमने इसको बहुत से लेटर भेजे हैं कि वो कोर्ट में अपीयर हो, लेकिन इसने हमारे सारे लेटर्स क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए. When I got to New Mullion, my eager expectations of the sweet and simple country village were sorely disappointed. तो हमारे यंग लॉयर ने क्या सोचा था कि जो न्यू मुलियन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी जगह है, बट उसकी ये जो सारी एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी की सारी क्या हो गई, टूट गई. जैसे ही वो न्यू मुलियन पहुंचा तो उसने देखा कि भाई वो न्यू मिलियन मैंने जैसा सोचा था, सिंपल स्वीट सी कंट्री होगा, बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था. क्यों? क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचा था उसने क्या देखा, its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted or a sour brown or bare of any paint at all. क्या था भाई, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसने क्या देखा, जो उसकी स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे मड है, बिल्कुल मड से भरी हुई है, और वुडन शॉप्स हैं, और कुछ तो पेंटेड हैं और कुछ के ऊपर सोर ब्राउन कलर का पेंट है. मतलब पेंट हो रखा है तो सोर ब्राउन, बेकार सा ब्राउन कलर का पेंट हो रखा है, और कई तो बिल्कुल पेंट ही नहीं है, विदाउट पेंटेड है. ठीक है. द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन. और सबसे एग्रीएबल चीज़ मुझे वहाँ पे क्या लगी, एग्रीएबल साइट मुझे क्या लगा, एक वहाँ का डिलीवरी मैन जो वहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट था. सो द ओनली एग्रीएबल साइट, ओनली ऐसी साइट जिसको देख के वो खुश हुआ, वो क्या था, वो डिलीवरी मैन जो वहाँ पे स्टेशन पे प्रेजेंट था. ओनली द एग्रीएबल साइट अबाउट दैट प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन हु वॉज प्रेजेंट एट द स्टेशन एट दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम व्हेन आवर यंग लॉयर रीच्ड देयर. So, who was that delivery man? We will read about him. He was about 40, red faced, cheerful, and thick about the middle. Now, here the description of the delivery man is given. He was about 40s and his face was red, cheerful personality, and thick about the middle. His working clothes were dirty, and the clothes he was wearing were very dirty and well worn, very much used up, and he had a friendly manner, and the manner he was behaving in, that was a very friendly manner. So this was the physical description given about that delivery man who was present at that station when our young lawyer reached there. You felt at once that he liked people, and when you meet that person, when you meet that delivery man, you may feel that he liked people, he liked the company of people. मतलब sociable बंदा, आपको लगेगा कि वो social बंदा है,
इंटरेक्ट करने वाला बंदा है, लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करने वाला बंदा है। तो ये डिलीवरी मैन की डिस्क्रिप्शन दे दी किसने, यंग लॉयर ने, कि ये बता दिया कि जैसे ही मैं वहाँ पे पूछा स्टेशन पे तो मुझे कौन मिला, डिलीवरी मैन मिला, और एक यही चीज़ थी, यही बंदा था, मुझे वहाँ पे एकदम से अट्रैक्टिव लगा। बाकी तो सब मेरी मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। वहाँ पहुँच के जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी क्या हो गई, ख़राब हो गई भाई, ख़त्म हो गई मेरी। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी कि कैसा था वो डिलीवरी मैन। 40s की एज में था, रेड फेस्ड, चीयरफुल पर्सनालिटी, थिक अबाउट द मिडल, एंड उसके जो वर्किंग क्लोथ्स थे वो डर्टी और वेल वॉर्न हो चुके थे। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। और जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरा, मैंने उससे बात करी, मैंने उसे कहा कि मैं एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ, एक इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम क्या है, ओलिवर लुटकिंस। ये किसने किसको बता दिया, यंग लॉयर ने डिलीवरी मैन को। यस, आगे देखते हैं। Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch through, always up to something or other. Lutkins, ओहो, अब ये डिलीवरी मैन बोल रहा है, लुटकिंस मैंने अभी इसको यहीं 1 घंटा पहले देखा था। हार्ड फेलो, ओहो, उसे पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, वो कभी मतलब कभी भी हमेशा कभी ना किसी मुसीबत में वो फंसा ही रहता है, कभी ना किसी उसमें वो खोया ही रहता है। तो उसके बारे में कौन बता रहा है, वो डिलीवरी मैन किसको बता रहा है, हमारे यंग लॉयर को। किसके बारे में, ओलिवर लुटकिंस के बारे में। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स शॉप। आई टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। अब यहाँ से हमारा एक टर्निंग पॉइंट, एक बिल्कुल जहाँ से कहते हैं गेम शुरू हो रही है। एक यहाँ से ध्यान से आपने पढ़ना है चैप्टर को कि कैसे कैसे वो डिलीवरी मैन उसको लुटकिंस को पकड़ने में हेल्प करेगा, कैसे लुटकिंस को वो पकड़ने में हेल्प करेगा। तो वो क्या कहता है, वो अभी बस पोकर गेम स्टार्ट करने ही वाला होगा फ्रिट्स की शॉप पे। कहाँ पे वो पोकर गेम खेलने गया होगा, जाने वाला होगा, वहीं होगा वो फ्रिट्स की शॉप पे। मैं तुम्हें बताता हूँ, जल्दी चलो, तुम्हें कोई फटाफट से हम लुटकिंस को वहाँ देखते हैं, और ये बताओ मुझे कि तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है ना लुटकिंस को ढूंढने की, हम आराम से उसको ढूंढ सकते हैं ना। येस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। अब इस पर हमारा यंग लॉयर कहता है, हाँ मुझे आफ्टरनून ट्रेन पकड़नी है वापस सिटी की, और मेरे पास उसके लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ सीक्रेट है मेरे पास। किसके लिए, लुटकिंस के लिए। यस, आई टेल यू व्हाट, आई हैव गॉट अ हैक, आई गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। अब इस पे हैक ड्राइवर क्या बोलता है, वो टोंगा ड्राइवर क्या बोलता है, डिलीवरी मैन क्या बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पास एक हैक है, मतलब एक टोंगा है, हॉर्स कार्ट है मेरे पास, मैं उसे लेके आता हूँ और हम लोग इकट्ठे ढूंढने जाते हैं किसको, लुटकिंस को। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा किसको ढूंढने में, लुटकिंस को ढूंढने में। अब ये बंदा, वो डिलीवरी मैन, वो हैक ड्राइवर, वो टोंगा ड्राइवर किसकी हेल्प कर रहा है, हमारे यंग लॉयर की हेल्प कर रहा है किसको ढूंढने में, डिलीवरी मैन, सॉरी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। क्लियर हो गई बच्चे बात, आगे देखते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेज ही हैंग्स आउट, मुझे पता है वो कहाँ कहाँ जाता है, वो कहाँ कहाँ घूमता है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उसको ढूंढने में। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लॉड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। अब भाई वो बंदा इतना ओपन और इतना फ्रेंडली था कि भाई मुझे उसकी अफेक्शन देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया उसकी अफेक्शन देख के, उसका ये प्यार देख के, उसका ये मतलब इतना अपनापन देख के। ठीक है, आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल। मैं जानता था कि उसे बिजनेस चाहिए था, मतलब उसकी तो कार्ड थी ना, ठीक है, पुलर ही था ना, उसकी वो हैक थी ना, तो उसको मैं उसकी हैक में जाऊंगा तो ऑफकोर्स उसका बिजनेस तो होगा, सही पैसे तो दूंगा उसको। जानता हूँ मैं कि ये उसका बिजनेस है, उसको वो अपने बिजनेस के लिए मुझे कह रहा है, लेकिन जो उसकी काइंडनेस थी वो बहुत ही रियल थी। आई वॉज ग्लैड दैट फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। मैं बहुत खुश था कि फेयर मनी, मतलब जो पैसे मैं देने वाला था एज अ रेंट, वो एक अच्छे फेलो के पास जाएंगे। I managed to bargain down to the $2 an hour, and then he bought from his house nearby a sort of a large black box on wheels. He remarked, "Well, young man, here is the carriage," and his white smile made me into an old friend. अब भाई क्या हुआ उसके बाद, yes,
आई वॉज, ये तो हो गया हमारा। हाँ, आई मैनेज टू बार्गेन, मैंने उसके साथ बार्गेनिंग करी और हमने रेंट सेट कर लिया, फेयर सेट कर लिया। मैंने बार्गेन करने के बाद 1 घंटे के $2 सेट किए कि 1 घंटे का रेंट मैं तुम्हें $2 दूंगा। एंड उसके बाद वो अपने घर गया और वहाँ से एक बड़ी सी ब्लैक बॉक्स व्हील्स के ऊपर जो बनी हुई थी, लाइक दिस वन, हेयर इट इज़ गिवन इन द इमेज, वो अपने घर से लेकर आ गया। ठीक है, और उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे कहा कि वेल यंग मैन, जल्दी करो, ये रही मेरी कैरेज, और एक बड़ी सी स्माइल दी मुझे। और उसकी स्माइल देख के मुझे एक ओल्ड फ्रेंड जैसी फीलिंग आई। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, ये विलेजर्स हमेशा रेडी रहते हैं एक स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी, उसने ये अपना खुद का टास्क बना लिया था ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का, जो वो मेरे लिए मेरा था टास्क, उसने वो टास्क अपना खुद का बना लिया था। उसका टास्क क्या था, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना, और वो उस डिलीवरी मैन ने, उस हैक ड्राइवर ने, उस टोंगा ड्राइवर ने उस टास्क को अपना टास्क बना लिया था। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. अब वो बोलता है हैक ड्राइवर, मैं इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता माई यंग फेलो, मतलब लॉयर को बोल रहा है, बट मैं गेस कर सकता हूँ शायद तुम उससे अपने पैसे वापस लेने आए हो लुटकिन से, मतलब शायद तुमने उसे कुछ पैसे दे रखे थे और वो तुम उससे वापस लेने आए हो, तो मतलब उसने तुम्हारे से उधार ले रखा है। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट। अब वो डिलीवरी मैन, वो हैक ड्राइवर उसको क्या बोलता है, यंग लॉयर को, वो किसी को भी एक पैसा नहीं वापस देता। ही स्टिल ओज मी 50 cents ऑन अ पोकर गेम, आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम। उसने मुझे अभी 50 सेंट्स वापस देने हैं, जो मैं उसके साथ पोकर गेम खेला था, तब उसने मुझे, वो मेरे से हार गया था, तो उसने मुझे 50 सेंट्स उसने मुझे वापस देने हैं, और मेरी ही गलती थी, मैं फूल था कि मैं उसके साथ खेला। ही इज़ नॉट रियली बैड। अब आगे उसकी देखो प्रेज भी कर रहा है, कहता है वो इतना बुरा नहीं है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी, लेकिन उससे अगर पैसा निकलवाना हो तो बहुत मुश्किल बात है भाई। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। अगर तुम उसे ढूंढने की कोशिश करोगे इन फैंसी कपड़ों में, ये जो तुमने पहने हुए हैं, और वो फैंसी कपड़े क्या आते हैं, एक लॉयर के वो कपड़े कैसे होते हैं बेटे, आपको पता ही है कि वो ब्लैक कलर के उन्होंने कोट होता है उनका, वाइट कलर की शर्ट होती है एंड ब्लैक ट्राउजर्स होते हैं। तो कह रहा है कि तुम अगर इन फैंसी क्लोथ्स में उसको ढूंढने की कोशिश करोगे तो उसको पता चल जाएगा और वो तुमसे दूर भागेगा। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिट्स एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। कहता है अगर तुम चाहो तो मैं फ्रिट्स की शॉप में अंदर जाऊंगा, मैं उसके लिए बात करूंगा, मैं पूछूंगा कि यहाँ पे ओलिवर लुटकिंस आया था या नहीं आया था, और तुम पीछे ही खड़े रहना, देखते रहना। तो मतलब वो हैक ड्राइवर क्या कह रहा है, हैक ड्राइवर कह रहा है कि मैं बात करूंगा, तुम ऐसे अंदर जाओगे इन कपड़ों में तो वो तुम्हें पकड़ लेगा, वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा, वो भाग जाएगा, है ना, क्योंकि तुम सस्पिशियस हो गए, पता चल जाएगा उसे कि भाई कोई आया है मुझे लेने के लिए, पकड़ने के लिए। तो क्या कह रहा है वो उसे, वो इसे ये एडवाइस दे रहा है, ही इज़ एडवाइजिंग हिम दैट आई विल गो इन टू द फ्रिज शॉप एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप द साइट फ्रॉम आउटसाइड। आई लव्ड हिम फॉर दिस, बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस। अब लॉयर क्या कहता है, लॉयर को ये बात उसकी सुन के इतना अच्छा लगा, कह रहा है कि भाई मज़ा आ गया मुझे ऐसे बंदे से मिलके कि वो इतनी मेरी हेल्प कर रहा है। कह रहा है मैं अपने आप से तो कभी भी लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाता, अगर कौन मेरी हेल्प ना करता तो वो हैक ड्राइवर मेरी हेल्प ना करता। तो विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग बाय माई मैन। उसकी हेल्प से मैं श्योर हूँ कि मैं अपने बंदे को, अपना बंदा कौन, मतलब ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ लूँगा। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on the Lutkins, that the man had refused to be the witness when his information would have quickly settled our case. अब भाई क्या हुआ, मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, मैंने उसको सारी बातें बताई। क्या क्या बताया कि मैं उसको समन देने के लिए आया हूँ, उसको भाई उसके लिए बुलावा आया है कोर्ट से लुटकिंस के लिए। उस बंदे ने एज अ विटनेस पेश होने के लिए मना कर दिया है कोर्ट में, तो उसी को ही समन देने के लिए, साथ ले जाने के लिए मैं आया हूँ कोर्ट में। ठीक है, अगर वो वहाँ पे विटनेस के रूप में प्रेजेंट हो जाएगा तो इससे वो जो केस चल रहा है वो एकदम सेटल हो जाएगा। द ड्राइवर लिसनड अर्नेस्टली, ड्राइवर उसे जो हैक ड्राइवर है उसे बड़ी ध्यान से उसकी बात को सुनता है। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड, वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज। अब उसके बाद वो क्या करता है, सुनने के बाद, मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो मेरे शोल्डर पे मुझे हिट करता है और हंसते हुए बोलता है, वेल
वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज। चलो हम ब्रदर लुटकिंस को सरप्राइज देते हैं। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। अब यहाँ पे वो बोलता है, लॉयर बोलता है लेट्स स्टार्ट, जल्दी से स्टार्ट करो ड्राइवर। मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मेगिनसन। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियन मेगिनसन फेंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शेल वी प्रोसीड टू फ्रेड्स। अब यहाँ पे हैक ड्राइवर बता रहा है यहाँ के लोग मुझे किस नाम से जानते हैं, बिल और मेगिनसन के नाम से जानते हैं। मेरा बिजनेस किस नाम से है, विलियन मेगिनसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग के नाम से है मेरा बिजनेस। और फिर उसके बाद ये सुनने के बाद लॉयर उसे कहता है ऑल राइट बिल, क्या अब हम प्रोसीड करें फ्रिट्ज की शॉप पे। येस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। अब वो क्या कहता है, हाँ लुटकिंस के वहाँ मिल जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और तो कहाँ ही होगा। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, क्यों, क्योंकि वो पोकर गेम बहुत ज़्यादा खेलता है, तो पक्का वो कहाँ होगा, वहाँ पे ज़रूर होगा। कहाँ पे, फ्रिट्ज की शॉप पे। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल। बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। अब वो कहता है, बिल कहता है कि भाई वो उसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो लोगों को डिसीव कर सकता है, वो बड़े अच्छे से लोगों को डिसीव कर लेता है। बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। और ऐसा लग रहा था कि बिल जो है लुटकिंस की इस टैलेंट को, डिसऑनेस्टी के टैलेंट को क्या कर रहा है, एडमायर कर रहा है। मतलब उसके बारे में बता रहा है कि वो यार वो बंदा ना बड़ा ही चालाकी से लोगों को ठगता है, लोगों को डिसीव करता है। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिस मैन ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट। अब यहाँ पे आए वही लॉयर कहता है मुझे ऐसा फील होता है अगर ये बिल एक पुलिसमैन होता ना तो ये पक्का लुटकिंस को बड़ी रिस्पेक्टफुली पकड़ता और उसको रिग्रेट से जेल में डालता। तो यहाँ पे हमें ह्यूमरस तरीके से, फनी तरीके से हमें बताया गया है कि वो जिस तरीके से उसकी प्रेज कर रहा है, मतलब उसकी नेगेटिव बातें बता तो रहा है लेकिन उस तरीके से बता रहा है कि उसकी नेगेटिव बातें भी ऐसे लग रही हैं कि जैसे पॉजिटिव है। बहुत अच्छे तरीके से उसको बता रहा है, ठीक है। बिल लेड मी इनटू फ्रिट्ज। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली। अब बिल कहाँ जाता है, फ्रिट्ज की शॉप। जैसे हम पहुंच जाते हैं फ्रिट्ज की शॉप में, बिल अंदर एंटर करता है उसकी शॉप में और जाके फ्रिट्ज से पूछता है क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा आज? उसका एक फ्रेंड उसको ढूंढ रहा है। बिल उससे बड़ी खुशी खुशी बड़ी अच्छे तरीके से उससे पूछता है, किससे, फ्रिट्ज से। Fritz looked at me, hiding behind Bill. He hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. अच्छा, अब फ्रिट्ज मेरी तरफ देखता है, किसकी तरफ, लॉयर की तरफ देखता है। वो बिल के पीछे छुप रहा होता है, क्यों, क्योंकि बिल ने उसे क्या बोला था कि भाई मेरे तुम मत पूछना, मैं अंदर जाऊंगा, तुम पीछे ही खड़े रहना, मैं पूछूंगा आगे जाके, ठीक है ना, नहीं तो तुम सस्पिशियस हो जाओगे, मतलब पता चल जाएगा उसको कि भाई मुझे कोई पकड़ने के लिए आया, अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट हुआ तो अब वो मेरी तरफ देख रहा होता है फ्रिट्ज, और वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है और फिर एडमिट करता है, हाँ वो अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे ही था। कौन? ओलिवर लुटकिंस अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे ही था। आगे देखते हैं। गेस ही इज गॉन ओवर टू गुस्ताव्स टू गेट अ शेव। शायद वो गुस्ताव की शॉप में गया होगा शेविंग के लिए, ठीक है। अभी ध्यान रखना बेटे, सबसे पहले वो लोग कहाँ गए, फ्रिट्ज की शॉप में, जहाँ पे किसका क्या एक्सपेक्ट किया गया था कि वो वहाँ पे पोकर गेम खेल रहा होगा। अब वो वहाँ नहीं मिला तो अब कहाँ गया, वहाँ से उसको पता चला कि वो कहाँ गया होगा, गुस्ताव की शॉप में गया होगा शेविंग के लिए। तो अब ये लोग कहाँ गए, वी ड्रॉप टू गुस्ताव्स बार्बर शॉप। गुस्ताव बार्बर शॉप पे गए ये लोग। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट। फिर से अंदर कौन गया, बिल गया, क्योंकि उसने मना कर दिया ना कि तुम मत आना, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे और उसको पता चल जाएगा कि ये तुम्हें पकड़ने आया है और वो वहाँ से भाग जाएगा। तो अंदर पहले कौन गया, फिर से अंदर बिल गया। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। और वो जो लॉयर थे वो वहाँ कहाँ खड़े रहे, डोर पे ही खड़े रहे। He asked not only the Swede but two customers if they had seen Lutkins. The Swede had not. Yes, he said angrily, I haven't seen him and don't care to. But if you find him, you can just collect that $35 he used me. अब भाई क्या हुआ, अब वो वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद, गुस्ताव की शॉप पे पहुँचने के बाद उसने सिर्फ स्वेड से ही नहीं पूछा, स्वेड मतलब जो स्वीडन में रहते हैं, सिर्फ उससे ही नहीं पूछा, उसने वहाँ के कस्टमर से भी पूछा कि क्या तुमने लुटकिंस को देखा है। स्वेड यहाँ पे कौन है, स्वीडन में रहने वाले गुस्ताव स्वीडन में रहने वाला है। जो स्वीडन में रहते हैं उनको स्वेड बोलते हैं। सिर्फ
उसी से ही नहीं पूछा, वहाँ पे जो कस्टमर्स थे उससे भी पूछा कि क्या तुम लोगों ने लुटकिंस को देखा है। द स्वेड हार्डंट, स्वेड ने तो नहीं देखा, और उसने गुस्से से क्या बोला गुस्ताफ ने, आई हैवेंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा और ना ही मुझे उसकी कोई केयर है, लेकिन अगर तुम्हें वो मिले तो जस्ट कलेक्ट $35 फ्रॉम हिम, जो उसने मुझे अभी देने हैं, जो उसने उसके ऊपर मेरे मतलब उधार हैं, वो उसने मुझे अभी $35 देने हैं। अगर तुम्हें वो मिले तो तुम उसे कह देना कि वे मेरे को मेरे $35 वापस दे जाए, मतलब मुझे पे कर जाए। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट द साइड ऑफ द होटल। अब एक कस्टमर को याद आ रहा था कि उसने शायद लुटकिंस को देखा है, या मेन स्ट्रीट की तरफ जाते हुए, होटल के इस साइड पे जाते हुए मेन स्ट्रीट की तरफ उसने लुटकिंस को देखा है। एज वे क्लाइम बैक इनटू द एग, हम फटाफट से वापस हैग में बैठे, उस टोंगा में बैठे। बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताव्स ही हैड प्रोबेबली गोन टू ग्रेज फॉर अ शेव। अब बिल ने कहा, क्या कहा, शायद लुटकिंस किसकी शॉप में गया होगा, ग्रे बार्बर की शॉप में गया होगा। क्यों? क्योंकि गुस्ताव के पास से उसका उधार ज़्यादा हो चुका था, मतलब एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुका था, उसके वहाँ पे उधार उसका ख़त्म हो चुका था, तो इसीलिए अब वो कहाँ पे शेव कराने गया होगा, ग्रे की शॉप में गया होगा। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, ग्रे की शॉप में जाते हैं, ग्रे बार्बर की शॉप में जाते हैं। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड पूल रूम, सॉरी वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। अब भाई हुआ क्या, ग्रे बार्बर की शॉप में हम जैसे ही पहुंचे तो हमें पता चला जस्ट 5 मिनट पहले वो लुटकिंस यहाँ से निकला है। जस्ट वी मिस्ड हिम ओनली बाय 5 मिनट्स, ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम। अब भाई वो कह रहे थे कि अभी अभी वो यहाँ से निकला है, शायद किसकी तरफ गया है, वो पूल रूम की तरफ गया है। पूल रूम इज़ टाइप ऑफ बार जहाँ पे सिगार वगैरह, सिगरेट वगैरह कंज्यूम की जाती है, बफ किया जाता है, ठीक है। एट द पूल रूम इट अपियर दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट एंड गोन आउट। अब पूल रूम पे पहुंचने के बाद तो उनको ये पता चला उसने यहाँ से अभी जस्ट क्या खरीदा है, सिगरेट का पैक खरीदा है और अभी अभी यहाँ से निकला है। सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock। भाई अब ऐसा हो रहा था कि जैसे कि वो हमारे आगे आगे और हम बस उसके पीछे पीछे, लेकिन हम उसको बस पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक एक मिनट का, मतलब थोड़े थोड़े मिनट्स का फासला आ रहा है, गैप आ रहा है, ठीक है। और अब उसके पीछे पीछे भागते भागते क्या टाइम हो चुका था, क्या हो गया था भाई, उसके पीछे पीछे थे हम और वो हमारे आगे आगे था। तो ऐसा लग रहा था बस हम उसको थोड़ा थोड़ा मिस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम का ही गैप आ रहा है। और ये करते करते एक से ऊपर टाइम हो चुका था, 1 बज चुका था दोपहर का, और आई वॉज हंग्री, और मुझे बहुत भूख लग रही थी। लॉयर इज सेइंग दैट कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट। लेकिन मुझे बिल की वो कंपनी मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, वो मुझे रफ़ कंट्री के अपने नेबर्स के बारे में, उनके ओपिनियंस, उनके बारे में बता रहा था कि मुझे थोड़ी देर से, मतलब थोड़ी देर के लिए भी ये नहीं महसूस हुआ कि मुझे और लुटकिंस मिला है या नहीं मिला। मतलब मैं बिल्कुल भी बोर नहीं फील कर रहा था उसकी कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बच्चे क्या पढ़ा कि सबसे पहले वो जो हैक ड्राइवर था उसे कहाँ लेके गया, किसकी शॉप में लेके गया, फ्रिट्स की शॉप में लेके गया, ठीक है। किसके लिए वो वहाँ पे पोकर गेम खेलता है लुटकिंस, तो उसको लगा कि वो वहीं पे ही होगा पक्का। फिर फ्रिट्स की शॉप में जब वो नहीं मिला तो फ्रिट्स ने बताया कि वो कहाँ गया होगा, कहाँ है वो, गुस्ताव बार्बर की शॉप में है। फिर वो गुस्ताव बार्बर की शॉप में पहुँचे तो वहाँ पे वो स्वीडन से था, तो उस स्वेड ने बोला, गुस्ताफ ने बोला वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और उसने मेरे अभी $35 देने भी हैं, तो अगर तुम्हें मिले तो वो मुझे उसको ज़रूर कह देना कि मुझे मेरे $35 पे कर दे। तो उन्होंने गैस लगाया, बिल ने गैस लगाया, गुस्ताफ के पास से उसका क्रेडिट ख़त्म हो चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था, तो शायद वो कहाँ गया होगा, ग्रे की शॉप में गया होगा, ग्रे बार्बर की शॉप में गया होगा। तो फिर वो ग्रे बार्बर की शॉप में गए, तब उनको पता चला वो अभी जस्ट यहीं से निकला है। फिर किसके लिए निकला है, वो पूल रूम के लिए, ठीक है। पूल रूम में गए वो, तो वहाँ से पता चला कि वो जस्ट अभी यहाँ से सिगरेट का पैक लेके निकला ही है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था कि वो उसके आगे आगे और ये उसके उनके पीछे पीछे, और ये करते करते दोपहर के 1 बज चुके थे, 1 से ऊपर टाइम हो गया था। और अब लॉयर को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड, और मैंने कहा कि क्यों ना कुछ हम खा लें। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाई यू लंच। रेस्टोरेंट पे जाते हैं, मैं वहाँ पे तुम्हारे लिए भी मतलब लंच ले आऊँगा, हम लोग लंच कर लेते हैं। वेल आई आउट टू गो होम टू माई वाइफ, आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, ओनली 4 of them are then them and they all are bad.
tell you what we will do. We will get to the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more than $50, and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. And we will go up to the Wades Hill and enjoy the view while we eat. अब यहाँ पे जब उसने बोला, लॉयर ने बोला क्यों ना कुछ हम खा लें, तो इस पे हैक ड्राइवर क्या बोलता है, नहीं मुझे मेरे घर जाना है मेरी वाइफ के पास, मुझे ये रेस्टोरेंट्स अच्छे नहीं लगते हैं और फौरी हैं यहाँ पे अवेलेबल, 4 ही रेस्टोरेंट्स हैं और सारे के सारे बेकार है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि मैं अपनी वाइफ के पास जाता हूँ, वो तुम्हारे लिए लंच पैक कर देगी और तुमसे ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेगी, सिर्फ $50 तुमसे चार्ज करेगी। ठीक है, थोड़ा सा ही चार्ज करेगी वो तुमसे, और उस ग्रीसी मील से, वो ऑयली जो मील तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलेगा इतना, उससे तो बेटर ही है घर का खाना। और हम लोग आराम से बैठ के वो वेड्स हिल पे जाके बैठेंगे, व्यू को एंजॉय करते हुए खाना खाएंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे भाई हैक ड्राइवर बड़ा ही क्लेवर है। पहले तो उससे अपनी हैक दे के, मतलब हैक रेंट पे वो करके उससे पैसे अर्न कर रहा है, फिर अब देखो उसको रेस्टोरेंट में भी जाने से मना कर रहा है, कह रहा है कि भाई यहीं पे ही मेरी वाइफ ही तुम्हारे लिए खाना पैक कर देगी और तुमसे ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेगी, मतलब 50 सेंट्स ही चार्ज करेगी, $50 चार्ज करेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आज हम रीड करेंगे, बाकी चैप्टर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इतना रीड करो, और समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को और शेयर करना। थैंक यू।